What's up everyone, Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Thursday, 27th of November and we had Sensex monthly expiry today. And today, Nifty briefly kissed the all-time high and of course towards the end of the day, we saw some sort of a sell-off. Sell-off itna massive nahi tha, just around 100 points of sell-off and towards the end of the day, markets thoda bahut us sell-off mein recover bhi kar diya hai. So we are hovering somewhere around the ATH levels and even commodities including gold and silver are also hovering around their all-time high levels. So today Sensex expiry was quite volatile. We were kind of expecting this because Nifty का जो monthly expiry था वो जितना expectation हम रखते हैं monthly expiry से उससे थोड़ा कम volatile था, but Sensex expiry kind of filled Nifty's quota. तो आज Sensex की straddle open हुआ somewhere around 310 which was super low because कल 420 पे straddle close हुआ, so almost 90 to 100 points of overnight crush देखने को मिला and 300 points was extremely low and जैसे market open हुआ first time it briefly touched the all time high, थोड़ा बहुत sell off आया, उसके बाद फिर से market एक all time high के आसपास गया, kind of a fake breakout and उसके बाद what happened was pure carnage. So Sensex from 86,100 levels it fell all the way till 85,500, so almost 550 points का fall देखने को मिला, especially when straddle was trading at a mere 200 rupees. And even towards the end, especially after 3 o'clock, the calls kind of blew up almost 10 times. जो in the money call था 25 rupees पे जो trade कर रहा था, within 2 minutes that went to 170. And वो जो one strike OTM जो call था, which was trading at somewhere around 7, it went to 70 in the span of less than 2 minutes. Of course, I got stuck in that call side gamma, but the damage was not that significant. मैंने almost break even के आसपास ही आज close किया. So now that the markets have touched the all-time high, now the markets might be trading in a fresh territory, in a fresh uncharted territory, probably from the next Monday. So let's get to the terminal. Let's see open interest क्या बोल रहा है, walls क्या बोल रहा है, price action क्या बोल रहा है. Let's get to the terminal. All right. So Nifty की daily chart पे you can see that we just kissed the all-time high and of course we were not able to close above the all-time high, but एक बार हमने मार्केट्स को ऑल टाइम हाई टच करके आए हैं एंड वी हैव गिवन सम सॉर्ट ऑफ एन इंडिसाइसिव कैंडल. तो काफ़ी दिनों के बाद एक इंडिसाइसिव डोजी टाइप ऑफ कैंडल फॉर्म हुई है एंड मेरे लिए तो दिस हाई बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आज एक पियर्सिंग दे के मार्केट ऐसे आया है एंड ये जो कैंडल का अगर लो से मतलब मार्केट नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है देन प्रोबेबली आई विल टेक सम शॉर्ट ट्रेड. वाई शॉर्ट ट्रेड? विल द मार्केट्स बी सोल्ड ऑफ फ्रॉम दिस लेवल? आई एम नॉट श्योर, बट एक रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड काफ़ी अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड देगा बिकॉज यहाँ पे अगर इस लो के नीचे हम लोग एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करेंगे, निफ्टी का मतलब सिर्फ हाई ही स्टॉप लॉस होने वाला है. सो अराउंड एक 100 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ वी कैन इवन एक्सपेक्ट 300 पॉइंट्स. सो 1:3 का एक ट्रेड रहने वाला है. ऑफकोर्स पोजिशनल बेसिस की बात कर रहा हूँ मैं. इंट्राडे के लिए हमारा जो गेम है वो कंप्लीटली डिफरेंट होने वाला है. बट ऑन अ लार्जर पिक्चर के बारे में अगर बात करना है तो आइडियली दिस शुड नॉट बी टेकन आउट. तो 25,800 लेवल नीचे ब्रेक नहीं होना चाहिए एंड आइडियली अगर मार्केट्स को ऑल टाइम हाई एंड इस अनचार्टेड टेरिटरी पे ट्रेड करना शुरू करना है, अगर मार्केट्स में स्ट्रेंथ है तो देन आइडियली 26,000 के नीचे भी मार्केट्स ट्रेड नहीं करनी चाहिए. ऑफकोर्स इंट्राडे में एक दो डिप मार सकता है 26,000 के नीचे, बट 26,000 के नीचे एक डेली क्लोज नहीं होना चाहिए. बट द मोमेंट वी स्टार्ट सीइंग वन ग्रीन क्लोज और वन डेली क्लोज अबव दिस 26,300 लेवल्स, देन मार्केट्स कैन सी सम सॉर्ट ऑफ अ ब्रेकआउट. बिकॉज ये जो ब्रेकआउट आया है, दिस ब्रेकआउट इज ओनली ऑन द बैक ऑफ सम 5 और 6 स्टॉक्स. सिर्फ 5 या 6 स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिला है एंड ब्रॉडर मार्केट्स जो है इतना स्ट्रांग नहीं है. लाइक मिड कैप होने दो, स्मॉल कैप होने दो एंड सम सेक्टर्स ऑल्सो दे आर नॉट कॉट अप, स्पेशली IT सेक्टर काफ़ी लैगर्ड है. तो इसके बारे में एक डिटेल्ड वीकेंड में एक वीडियो बनाऊंगा कि व्हाट इज फ्यूलिंग दिस मार्केट रैली एंड शुड वी बी लाइक कॉशियस बिकॉज फॉर सम पीपल feel that this all time high is kind of artificial because सिर्फ 5-6 स्टॉक्स के रैली के कारण मार्केट्स ऑल टाइम हाई के आसपास है, एक ब्रॉडर बेस्ड रैली नहीं आ रही है. सो आई एम गोना टॉक अबाउट दिस इन द वीकेंड वीडियो. बट अगर लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो ऑफकोर्स वी हैड सम सॉर्ट ऑफ अ वोलेटाइल डे एंड यस, निफ्टी से बात करने से अच्छा आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी थी. सो लेट्स गो टू द सेंसेक्स वॉल्स फर्स्ट. अगर सेंसेक्स वॉल्स की बात करें तो यस वी हैड अ वेरी मेजर क्रश, ओवरनाइट क्रश काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला. वी क्लोज समewhere around 420
एंड ऑलमोस्ट 300 के आसपास स्ट्रैडल ओपन हुआ, विच इज़ ऑलमोस्ट 100 पॉइंट क्रश एंड 300 पॉइंट्स वॉज pretty low. तो I waited for some sort of a delta move and practically there was no wall spikes. Of course बीच में यहाँ पे थोड़ा बहुत spikes आ रहे थे, but those were like pretty instantly consumed and there was no like IVs hold नहीं कर रहे थे. Straddle was linearly decaying but delta moves काफ़ी deadly थे आज. So अगर सेंसेक्स की बात करें तो I was expecting the markets to expire somewhere around 86,000 levels because जब मार्केट्स फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया तो कल मैंने वीडियो में डिस्कस किया था कि फर्स्ट टाइम जब मार्केट्स हाई टेस्ट करने को आता है वहाँ पे सिर्फ मैं कॉल शॉर्ट करने वाला हूँ एंड जब मार्केट नीचे आके यहाँ से एक ब्रेकआउट करके यहाँ से एक सपोर्ट लेके आएगा देन प्रॉबली द मार्केट्स माइट बी लुकिंग एट अ फ्रेश ऑल टाइम हाई. तो द मार्केट्स इंस्टेड ऑफ टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम दिस लेवल थोड़ा जल्दी ही मार्केट सपोर्ट लेके हायर हाई पैटर्न बना के ऊपर आ गया था. सो एट दिस पॉइंट आई पोजिशन माई सेल्फ फॉर 86,100 86,200 स्ट्रैडल्स पे मेरे अपने आप को पोजीशन किया था. बट जैसे मार्केट ने यहाँ पे फेकआउट दिया थोड़ा पुट साइड स्पाइक में मैं थोड़ा फंस गया था एंड एट द सेम टाइम आई डिडंट एक्सपेक्ट द मार्केट्स टू ब्रीच दिस लेवल. सो आई वाज एक्सपेक्टिंग द मार्केट्स टू बाउंस फ्रॉम दिस लेवल बट यहाँ से जितना मेरा एक्सपेक्टेशन था उससे ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स नीचे जाके मार्केट ने वापस बाउंस मारा एंड स्पेशली दिस कैंडल, ये जो यहाँ पे जो कैंडल्स दिख रहे हैं दीज वर आई मीन ऑफकोर्स सेंसेक्स की बेसिस पे सेंसेक्स जितना ट्रेड कर रहा है उसका बेसिस पे सिर्फ 150-200 पॉइंट्स ही मूव था. बट हाउ द स्ट्रैडल्स वर प्राइसिंग इन, यहाँ पे जो OTM कॉल था फर्स्ट 1 OTM जो कॉल था दैट वेंट फ्रॉम 7 to 70 एंड जो ITM कॉल था वो इट वेंट फ्रॉम 25 to almost 170 in a span of less than 2 minutes. 2 मिनट के अंदर यहाँ पे एक हीरो काइंड ऑफ ट्रेड हो गया था. बट ऑफकोर्स आई गॉट स्टक इन दैट कॉल साइड गामा एंड दिस कॉल साइड गामा एक्चुअली मेड मी क्लोज इन रेड. वरना मैं ग्रीन में क्लोज करता बट यहाँ पे कॉल साइड गामा में ऑलमोस्ट 0.1-0.15 का एक्स्ट्रा लॉस हो गया. तो आई हैड टू क्लोज समवेयर अराउंड 0.1% रेड में क्लोज करना पड़ा. तो कल की अगर बात करें तो अगेन कल निफ्टी की 2DT है. सो let me go to the straddles again. So कल निफ्टी की 2DTs है and Nifty straddle is not very attractive because 210 rupees पे ट्रेड कर रहा है and tomorrow hopefully it should be opening somewhere around 200 के ऊपर ओपन होना चाहिए. अगर 200 के नीचे ओपन होता है तो ऑफकोर्स शॉर्ट वॉल ट्रेड तो मेरे लिए डेड होगा एंड आई विल बी ट्रेडिंग सम सॉर्ट ऑफ अ मीन रिवर्शन सिस्टम फ्रॉम द पुट साइड. मतलब लॉन्ग साइड में मीन रिवर्शन ट्रेड लेने वाला हूँ एंड अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो लाइक फ्रॉम द ब्रेकआउट ट्रेड भी मैं करने वाला हूँ इफ़ द ऑल टाइम हाई इज ब्रोकन आउट. सो अगर प्राइस एक्शन पे बात करेंगे तो मेरा कल के लिए ये प्लान बनने वाला है. ऑफकोर्स तो टीटा डीके के लिए जो ट्रेड करने की बात ही नहीं बनती ऑन अ 2DT स्पेशली विथ सच लो प्रीमियम्स बिकॉज आपका जो भी टीटा डीके से मतलब जो टीटा डीके या वॉल क्रश से आपको पैसे मिलने वाला है वो सारा का सारा पैसा डेल्टा हेजिंग कॉस्ट में जाने वाला है. सो इट डजेंट मेक सेंस टू ट्रेड प्योर डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रक्चर टुमारो. बट अगर आज के प्राइस एक्शन देखेंगे तो यहाँ पे एक फेकआउट काइंड ऑफ अ पैटर्न बनाया है बिकॉज एक हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई बना के उसके बाद यहाँ पे सेलिंग आई है. तो इफ at all this rally is to be valid then tomorrow we should open gap up and आफ्टरनून तक यहाँ पे कंसोलिडेट करके आफ्टरनून के बाद एक ब्रेकआउट देखने को मिल जानी चाहिए. एंड अगर मेरे को ब्रेकआउट मिलता है स्पेशली 2 o'clock के बाद अगर मार्केट यहाँ पे ट्रेड करके कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है तो देन आई विल प्रोबेबली बी taking the direction in the I'll be taking the trade in the direction of the trend. बट अगर मार्केट ने सुबह ही मान लो कि ऑल टाइम हाई के ऊपर गैप अप खुल गया तो देन वो मेरे लिए थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस काइंड ऑफ अ मूव हो जाएगा बिकॉज जब मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर ही मान लो 26,350 या 26,340 के आसपास अगर मार्केट खुल जाता है देन द मार्केट्स विल बिकम लाइक फॉर मी वो थोड़ा एकदम जैसे कि मैंने कहा थोड़ा सिचुएशन डाइसी बन जाएगा बिकॉज यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है या यहाँ पे मार्केट्स आज के हाई को मतलब टेस्ट करके रिटेस्ट करके वहाँ से वापस भी जा सकता है. बट इन दैट केस आई विल बी सिटिंग आउट ऑफ द मार्केट्स. यहाँ पे मेरा कोई ट्रेड लेने वाला नहीं हूँ बिकॉज हो सकता है कि लाइक इफ एट ऑल यू वांट टू ट्रैप द पीपल देन मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी लाइक ऑल टाइम हाई के आसपास एक बहुत बड़ा सेल ऑफ आना चाहिए तो देन मार्केट एक बड़ा गैप अप खुलता है एंड वहाँ से एक प्योर ट्रेंडिंग डे देखने को मिल जाता है. तो अगर आप 2021 या 2022 के भी ऑल टाइम हाई जब ब्रेकआउट के आसपास
अगर बुल ट्रैप को करना चाहिए तो देन मोस्ट प्रोबेबली ऑल टाइम हाई के ऊपर एक गैप अप खुलता है एंड देन मोस्ट ऑफ द पीपल वुड बी एक्सपेक्टिंग द मार्केट्स टू टेक सपोर्ट एट दिस लेवल, दिस लेवल, दिस लेवल, दिस लेवल, बट सारे के सारे सपोर्ट्स को मार्केट एक ही शॉट में तोड़ देता है एंड वी गेट सम सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रेड मारुबोजू कैंडल. सो अगर एक बड़ा गैप अप खुल जाता है तो देन मेरे लिए आउट ऑफ सिलेबस काइंड ऑफ अ पैटर्न हो जाता है एंड आई विल बी अवॉइडिंग दैट पैटर्न. बट अगर मार्केट थोड़ा भी माइल्ड गैप अप खुलता है, स्पेशली लाइक इस रेंज के अंदर खुलता है एंड इफ द मार्केट कंसोलिडेट्स, यहाँ पे कंसोलिडेट करके अराउंड 1 बजे के आसपास अगर ब्रेकआउट मिलता है 12 से 1 बजे के बीच, देन प्रोबेबली आई विल बी ट्राइंग टू टेक द ब्रेकआउट ट्रेड विद द क्लोजेस्ट स्विंग लो एज माई स्टॉप लॉस. ठीक है. वॉट इफ लाइक द मार्केट गैप्स डाउन, अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाता है देन प्रोबेबली आई विल बी लुकिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ अ बाय ऑन डिप. बेसिकली एक पुट साइड की तरफ, एक पुट शॉर्ट के लिए एक मीन रिवर्शन ट्रेड ढूंढने वाला हूं एंड उसके लिए एक लॉजिकल लेवल दिख रहा है मुझे यहाँ पे. तो यहाँ पे एक लॉजिकल लेवल दिख रहा है विच इज समवेयर अराउंड 26,020 लेवल्स. तो अगर आप 26,020 पे भी आप पोजीशंस बनाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली 25,990 और 25,980 के आसपास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए. एक 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आप एक लॉन्ग ट्रेड बन सकता है. यस, हाई प्रोबेबिलिटी है कि गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट्स कंटिन्यू करे, बट आई एम एक्सपेक्टिंग इफ अट ऑल दिस, बिकॉज मैं कंटिन्यूसली बता ही रहा हूं कि मेरा जो बायस है इट इज साइडवेज टू बुलिश. तो जब तक यहाँ के इसके ऊपर एक डेली क्लोज नहीं देता है तो मेरा बायस है साइडवेज टू बुलिश. बट जैसे यहाँ पे एक डेली क्लोज दे देता है ऑल टाइम हाई के ऊपर, देन आई विल बी कन्वर्टिंग माई बायस टू फुल्ली बुलिश. तो यहाँ पे साइडवेज टू बेरिश बायस के लिए यहाँ पे एक मीन रिवर्शन ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं. बट मैं मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है, आई विल नॉट ट्राई टू शॉर्ट द मार्केट्स इवन इफ इट कम्स टू दीज लेवल्स. यहाँ पे रेजिस्टेंस जरूर है बट आई विल ट्राई टू नॉट शॉर्ट द मार्केट्स. अगर मार्केट्स यहाँ पे रेजिस्टेंस हिट करके वापस आएगा तो जाने देता हूँ, अगर आता है तो वेल एंड गुड, बट मेरे लिए वो ट्रेड्स नहीं है. तो आई विल नॉट ट्राई टू शॉर्ट द मार्केट्स एट दिस पॉइंट. आई विल ट्राई टू गो लॉन्ग एट द सपोर्ट और एट द ब्रेकआउट. सो दीज आर my potential trades for tomorrow and pure delta neutral structures as far as possible थोड़ा कल के लिए avoid करो because 210 रुपीज़ का straddle क्लोज हुआ है. मोस्ट प्रोबेबली कल 200 के आसपास भी ओपन होगा या 190 के आसपास भी ओपन होगा. देन इट डजंट मेक सेंस फॉर यू टू बी ट्रेडिंग दिस. सो आई विल सी यू अगेन गाइस आफ्टर टुमारोज मार्केट एक्शन. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.